A 10-meter long horizontal wire extends from northeast to southeast. It is falling with a speed of 5 meters per second at right angle to horizontal component of the Earth's magnetic field of 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The value of induced EMF in wire is. So we know the length of wire, that is 10 meter, right? And this wire falling with the speed of 5 meter per second. So speed of wire will be 5 meter per second, right? And it is falling in the presence of Earth's magnetic field, which is B 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. So now for calculating the induced EMF, that is VBL. We have all three values. We will put the value of V, that is 5, B 0.3 into 10 to the power minus 4, L, that is 10. Now if we will multiply these terms, we will get the value of EMF is 1.4 into 10 to the power of minus 3. In this problem, we have given the figure. Figure shows certain wire segments joined together to form a coplanar loop. The loop is placed in perpendicular magnetic field in the direction going into the plane of the figure. The magnitude of the field increases with time. I1 and I2 are the currents in the segments AB and CD. Then which option is correct? Okay. So first of all, when the magnetic field is perpendicular to the plane and going into the plane of the loop, then and magnetic field is going to increase. So if magnetic field will increase, then flux will also increase, because flux equals to B into A. So flux will also increase. So if there is change in flux, if there is change in flux or magnetic flux, then there will be induced EMF in the loop. There will be induced EMF in the loop, and hence EMF in the loop, and hence there will be induced current, and hence there will be induced current in the loop. Okay, so the direction of induced current in the loop can be given by Lenz law. So as flux is increasing into the plane, so current will flow in such a way that it will oppose the change in flux. So the direction of current in the bigger loop will be like this, and due to this direction of current, as the loops are connected to each other, so the amount of current or magnitude of the current, as given that in AB is I1 and CD is I2, both will be equal. So I1 will be equals to I2, because both loops are connected to each other, and the direction of current in the smaller loop will be from A to B, and for bigger size of the loop will be from D to C. So I1 will be in the direction AB and I2 will be in the direction DC, and the magnitude of both current will be equal to each other. That's the answer of this problem. Thank you. Hello everyone. The variation of induced EMF E with time t in a coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as. So the question is asking us to find out the variation
of induced EMF E with time t if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity v. We'll begin by writing the formula for induced EMF. It is given by E is equals to negative n d phi by dt. Here, the value of phi is given by formula BA, where B is the magnetic field due to the short bar magnet and A is the area of the loop and N is the number of loops in the loop. Therefore, substituting the value of phi in this equation, we can rewrite it as E is equals to negative n d by dt into BA. Since only the value of magnetic field is changing, we can write that E is equals to negative NA d by dt. When the bar magnet has passed through the coil, the magnetic field direction will become opposite, as this will now be south pole and this will be north pole. Therefore, after the bar has passed, this equation will become E is equals to NA dB by dt. Therefore, there is a switch in polarity of the induced EMF. As we can see from the options given, only the part B has a switch in the polarity of induced EMF. Therefore, answer is option number B. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस क्या है r है, कैरिंग करंट I लाइज इन सर्कुलर xy प्लेन, ओके, सेंटर एट ओरिजिन. तो करंट कैरिंग क्या है, सर्कुलर लूप है जिसको ओरिजिन पे रखा गया है. द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू xy प्लेन, तो कह रहा है कि कितना फ्लक्स पास करेगा xy प्लेन के थ्रू, ओके. तो यही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये सर्कुलर कॉइल हो गया, ओके. और ये कहाँ रखा हुआ है, हमारे xy प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, और एक और दूसरे लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ओके. अब हमारे पास ये हो गया, ये करंट कैरिंग है, ठीक है. आई करंट इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये क्या होंगी, इस डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगी. और एक सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सर्कुलर होती हैं. यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर से इस तरीके से. तो यहाँ क्या बनाती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं. और जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना लेती हैं, तो जितना फ्लक्स आ रहा है, मीन्स जितना फ्लक्स यहाँ से पास कर निकल रहा है, उतना ही फ्लक्स क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है. तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. नेट फ्लक्स, ओके, कमिंग, नेट फ्लक्स इसको लिखते हैं आउट गोइंग, आउट गोइंग, ये इक्वल है किसके, नेट फ्लक्स कमिंग, ओके. तो जहाँ चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा, चेंज इन फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके. तो यहाँ पे नेट फ्लक्स जो होगा हमारा, मतलब क्लोज लाइन बन जाने के कारण से हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके. तो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ राइट ऑप्शन होगा इसका. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज केप्ट such that 90 degree vertex is very close to an infinitely long conducting wire. Okay, the wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. Current in the triangular loop is in काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जो ट्रायंगुलर लूप है अपना फिगर में, इसमें जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है. एंड इंक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकंड में. जो इसमें जो करंट है आई, तो जो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स डी आई बाई डी टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. कितनी रेट से, 10 एम्पियर पर सेकंड की रेट से, 10 एम्पियर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है.
हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इस लूप में अपना क्या है, इस लूप में अपना करंट है, ठीक है, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वायर में, जो भी वायर इसके पास रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना वायर है, जो ट्रायंगुलर लूप है, उसमें क्या ले लेंगे, ये एक एलिमेंट ले रहे हैं dy लेंथ का, ठीक है, तो अपना ये क्या विथ क्या है, dy है, ठीक है, यहाँ से बाई डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से बाई डिस्टेंस पे ले लिया। तो गाइस ये क्या है, ये कितना एंगल हो जाएगा अपना, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने एंगल वाई सेक्टर ड्रॉ किया है, और ये अब अपना आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, तो ए वाई डिस्टेंस है, तो ए वाली भी वाई हो जाएगी और ए वाली भी वाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस dy एलिमेंट के ड्यू टू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस dy के ड्यू टू इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। एंड जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, जो अपना लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर हो जाएगा, वो सेम इन दी डायरेक्शन ऑफ जिसमें अपना जो हाइपोटेन्यूस में जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो मान लेते आई करंट इसमें इंड्यूस हो गया। अब आई करंट इसमें इंड्यूस हो गया, तो आई करंट इंड्यूस होने की वजह से इससे जो ट्रायंगुलर लूप है इससे रिलेटेड फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं हम, तो बस फ्लक्स फाइंड करना है हमें। तो ये जो लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर में करंट इंड्यूस हो रहा है आई, उसके ड्यू टू जो फ्लक्स होगा इस ट्रायंगुलर लूप से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा अपना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस वायर के ड्यू टू इस ट्रायंगुलर लूप पे, ये हो जाएगी अपनी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू इसमें करंट कितना है आई, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बाई, ठीक है, इंटू एरिया क्या हो जाएगा गाइस, किस एरिया के थ्रू अपन वो निकाल रहे हैं फ्लक्स, तो हमारा जो एरिया है वो कुछ ऐसे है, मीन्स ये वाली विथ है, ठीक है। ये वाली विथ तो चेंज हो रही है, यहाँ पे अपनी बाई 0 थी, बाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी अपनी 0 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये वाली विथ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपना, देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2y एंड विथ कितनी है dy, तो एरिया कितना हो जाएगा 2y dy हो जाएगा, 2y dy। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.1 तक, ठीक है। तो यहाँ से अपना 2y कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई अपना बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 0.1 dy, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना दिस इज इक्वल टू जो फ्लक्स रिलेटेड होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 10 पाई। ये अपना क्या है, फ्लक्स रिलेटेड है इस ट्रायंगुलर लूप के थ्रू और ट्रायंगुलर वायर के थ्रू, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन जो अपना लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर है एंड दिस लूप। तो मैं लिखता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा जो फ्लक्स है डिवाइडेड बाई आई, जो अपना एम है उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 10 पाई इंटू 1 बाई आई, ठीक है, करंट से डिवाइड कर दिया तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 10 पाई। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया गाइस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है इन वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर क्या हो जाएगा अपना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू अपना जो ट्रायंगुलर लूप है उसमें किस रेट से अपना करंट इंक्रीज हो रहा था, वो हो रहा था 10 एम्पियर पर सेकेंड से, तो अपना ये कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी होता है कि किस रेट से अपना करंट चेंज हो रहा है किसमें, ट्रायंगुलर लूप में, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर हो जाएगा अपना एम कितना है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 10 पाई इंटू करंट कितने रेट से चेंज हो रहा था अपना 10 एम्पियर पर सेकेंड से, तो ये कितना आ जाएगा अपना म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई वोल्ट, ठीक है। तो इतना अपना क्या आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 इफ द लूप इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर, ठीक है। तो वो बोल रहा है जो लूप है उसको हम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अबाउट द वायर रोटेट करें तो अपना फ्लक्स इससे चेंज नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नहीं हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है एन एडिशनल ईएमएफ ऑफ म्यू नॉट अपॉन पाई वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द वायर, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड में क्या बोल रहा है, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूस, तो ये अपन ने गलत है। अभी अपन ने क्या देखा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा क्या होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा हाइपोटेन्यूस के। अगर दो अपने पैरेलल वायर रहते थे और उनमें जो करंट रहता था वो सेम डायरेक्शन में रहता था, तो वो कैसे रहते थे, रिपल्सिव रहते थे। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्ट करेंगे, तो
ऑप्शन 4 यही बोल रहा है, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड दी लूप। तो ऑप्शन 4 एंड करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इस तरह से हमारे पास वायर है, लेट से, ठीक है, एक वायर है यहाँ पर, इस तरह से कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट है, और ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है हमारा और ये राइट है, लेफ्ट टू राइट, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, लेट से आई फ्लो हो रही है, ठीक है। सो बोल रहा है ड्यू टू सोर्स ईएमएफ, एक सोर्स इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, कहीं से आ रही है लाइट। व्हेन द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर विल, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी वायर में वो क्या होगी, तो यहाँ पर देखें अगर, तो जब तक फ्लो करेगी इसमें करंट, जब तक फ्लो कर रही है करंट, सोर्स जब तक इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, लेट से ये सोर्स है हमारा कोई, ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और इधर आ रही है। तो जैसे ही इस वायर में क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, मतलब इसको कट कर देंगे, जब यहाँ से सोर्स ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि करंट जो थी इधर से जाने वाली, जो हमारी करंट थी इस डायरेक्शन से सोर्स से जाने वाली, वो क्या होगी, ज़ीरो हो गई। जब ज़ीरो हो गई तो जो इंड्यूस्ड करंट थी वो क्या थी, अपोज जिसको करती थी, लेंज के जो लॉ होता है उसके हिसाब से, उसके उस नियम से अगर देखें तो वो उसी का जो है क्या करती है, अपोज करती है, जिसके वजह से वो जो है पैदा होती है, वो इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से जनरेट होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब वो सोर्स ही खत्म हो गया, वो करंट ही खत्म हो गई, तो इंड्यूस्ड करंट अपोज किसको करेगी, तो उसकी जो फ्लो रहेगी वो क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट ही बनी रहेगी अपोज करने के बाद, ठीक है। जब तक फ्लो होगा तब तक, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो तो अपोज करेगी, लेकिन जैसे ही फ्लो खत्म हो गया तो क्योंकि करंट की कोई डायरेक्शन अब बची नहीं, यहाँ से सोर्स तो कोई है ही नहीं अब, तो जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगी, लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करती रहेगी, ठीक है, जो भी करंट होगी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, एल टू आर फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। Question is, a coil of metal wire is kept stationary in a non-uniform magnetic field and EMF is induced in the coil. We need to determine whether this statement is true or false. So suppose this is now magnetic field is non-uniform, means we can say here, suppose in one half the magnetic field is B1 and in the other half of the region magnetic field here is B2. So we are required to state whether an EMF will be induced in the coil or not, and this coil here is stationary, that it is not moving. Hence we can say here magnetic flux through this region will remain constant, although magnetic field is, let's say, different on two halves. So we can say here, since magnetic flux is not changing, that is, change in magnetic flux is zero, so by the concept of Faraday's law of EMI, we have as induced EMF as minus d phi by dt, and since d phi here is zero, so no EMF will be induced, so the statement says an EMF is false. Hence we can say here that this statement is false, although we can say magnetic field is not uniform, but since magnetic flux is constant, so in this case no EMF will be induced, so false is our answer. बोल रहा है कि मेटल रॉड है हमारे पास AB, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है ये AB है, ठीक है, ये एक रेल है, ये रेल है तो जिस पर ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस, ठीक है, फ्रिक्शन लेसली ये क्या इस पर स्लाइड कर सकता है, और इसकी सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों रेल्स के बीच में वो क्या है, L है, और यहाँ पर रेल जो है कनेक्टेड है एक इंडक्टर और एक आर से, मतलब एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, जो कि दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रॉड है वो x नॉट डिस्टेंस पे है एक स्ट्रेट वायर से, लेट्स से वो स्ट्रेट वायर क्या है, उसका नाम हमने दे दिया है क्या है, MN है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, क्या है, I नॉट, देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, इसके वजह से इसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, फ्लक्स क्रॉस होगा, इसके वजह से ये भी मूव करेगा, तो यहाँ पर एक करंट जनरेट हो गया, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो हमें वो निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला t इक्वल्स 0 पर वो मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, x नॉट डिस्टेंस पे है जब टाइम 0 था, ठीक है, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेट्स से ये P पॉइंट पे है भी, इस पॉइंट को बोलते हैं P पॉइंट पे यहाँ पहले से है जो रॉड है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल पोजीशन इसकी। अब इसमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करना है, ए पार्ट में हमें निकालना है
रिलेशन बताना है हमें करंट आई जो इसमें जो है डेवलप होगी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ठीक है। डी आई बाई डी टी हमें बताना है, इन सब में रिलेशन हमें बताना है, डी आई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। बी पार्ट में हमें करना है, इसे ए पार्ट में होगा, और बी पार्ट में क्या करना है, बोल रहा है टी इक्वल्स टू टी टाइम पर, किसी टाइम टी पर जो ए बी है हमारा, जो ये रॉड है वो मूव कर जाता है, अभी एक्स डिस्टेंस है, फिर वो मूव कर जाता है 2x डिस्टेंस, लेट से वो यहाँ से अभी यहाँ आ गया है, हमारा रॉड इस जगह इस पोजीशन पे कहीं आ गया है, मतलब अब जो इस स्ट्रेट वायर एम से उसकी डिस्टेंस है अब क्या हो गई है 2x नॉट हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो इस पोजीशन में बोल रहा है हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए, नेट चार्ज के लिए, जो नेट चार्ज फ्लो होगा रेजिस्टेंस R से, ठीक है, t इक्वल टू 0 टाइम से t इक्वल टू टी टाइम। सो सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, बोल रहा है कि बार जो ये जो ए बी बार है क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, सडनली किसी टाइम t पर। तो उस टाइम पे बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है R वो फाउंड है, मतलब पाया गया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है आई नॉट बाई मतलब I1/4 टाइम्स है, ठीक है, 2t के। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो LR है, LR क्या होता है, LR होता है टाइम कांस्टेंट, LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है L/R, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमें सी पार्ट में फाइंड आउट करनी है इस सर्किट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जब इसमें करंट अपर डायरेक्शन फ्लो होगा तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर जो है पास होंगी RL से, तो इसकी वजह से R में जो है एक इस सर्किट में मतलब इस वायर में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी जो कि होगी इसके डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट, जो इसको अपोज करेगी, जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, उसको अपोज करेंगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक करंट डेवलप हो जाएगी आई, स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी R और L के थ्रू, ठीक है, और ये V वेलोसिटी से इसको हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, स्लाइड करेंगे जब, तो एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेट्स से अभी वो x डिस्टेंस पे है, किससे, MN से, MN जो स्ट्रेट वायर है उससे x डिस्टेंस पे है। तो इस टाइम पर ABCD हमने इसको नाम दे दिया कि ये AB रॉड है हमारा, C और D पॉइंट पे रेजिस्टेंस और L सर्किट मतलब इंडक्टर जो है कनेक्टेड है इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ABCD में, ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, इस तरह से इस डायरेक्शन में किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लगा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन ABCD में KVL लॉ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, KVL लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी d∅dt, ठीक है, dt ये इक्वल हो जाएगा I इंटू R कैपिटल R प्लस हो जाएगा L इंटू di/dt के। ये I क्या है, I जो करंट है फ्लो हो रही है, ठीक है, इस सर्किट में, तो di/dt ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी हुआ और हमें फर्स्ट पार्ट का ये आंसर भी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं क्या पूछ रहा था, I मतलब करंट जो फ्लो होगी इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है, di/dt और d∅dt में रिलेशन बताना था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं d∅dt भी है, यहाँ पर I भी है और di/dt भी है, तो यहाँ पर तीनों में ये रिलेशन भी यहाँ पर ये इक्वेशन बता रही है। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था उसका ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे कि जो t इक्वल टू टी टाइम पर जो ए बी बार है वो क्या हो रहा है 2x डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए, चार्ज के लिए, जो टोटल नेट चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R वो हम कैलकुलेट करेंगे t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू टी टाइम के लिए, ठीक है। तो हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं इस तरह से। बी पार्ट में हम क्या करना है, ये बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये माने कि जो इस तरह से रॉड है हमारा, रॉड को मान लेते हैं इस तरह से स्लाइड कर रहा है, पहले उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या थी, x थी, ठीक है, बाद में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है जो कि हो जाती है 2x और हो जाती है, मतलब यहाँ से MN से जो कंडक्टिंग वायर है वहाँ से उसकी डिस्टेंस हो जाती है 2x। तो स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन क्या थी, P पॉइंट जो हमने लिखा था वो क्या थी, x डिस्टेंस थी, तो x से वो 2x जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट पे मतलब x पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगी, वो क्या होगी, लेट्स से B इक्वल्स टू होगी μ0 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई इंटू आई वाई क्या हो जाएगा x, आई वाई x, क्योंकि डिस्टेंस क्या थी, x थी यहाँ से, इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जो टोटल फ्लक्स चेंज हो रही है वो क्या है, तो हम स्मॉल फ्लक्स निकाल लेते हैं किसी स्मॉल एरिया के लिए।
उसको रॉड के किसी छोटे से स्मॉल एरिया के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी एक छोटे पार्ट के लिए dx के लिए निकाल लेते हैं, छोटा सा यहाँ पर कट करते हैं। तो वहाँ से देख रहे हैं कि पतला सा ऐसे कट कर लेते हैं, dx से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वायर से वहाँ से निकाल लेंगे कि रॉड से कितना हो रहा है। तो d फाई जो आएगा हमारा वो आ जाएगा b इंटू da होता है, b इंटू a होता है, तो यहाँ पर da यूज करेंगे क्योंकि स्मॉल एरिया होगा रॉड का, ठीक है। सो यहाँ से आएगा b इंटू l इंटू dx। l क्या है? l है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास dx आ गया इस तरह से। सो यहाँ से जो डेल फाई होगा, d फाई होगा, उसको हम लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है? करना है हमें x नॉट से x तक, ठीक है, सॉरी 2x नॉट तक। कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है रॉड? x पर था, अब 2x पर पहुँच गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b l dx, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा d फाई इक्वल्स टू आ जाएगा, या डेल फाई इक्वल्स टू आ जाएगा, जो चेंज इन फ्लक्स होगा, कैपिटल D इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो कैपिटल डेल लिख सकते हैं, जो चेंज इन फ्लक्स है। चेंज इन फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक? x से x के बीच में, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन फ्लक्स है डेल फाई, वो क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा म्यू नॉट, ठीक है, आई नॉट इंटू एल, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, और इंटू आ जाएगा लॉग बेस ई इंटू 2, ठीक है। सो ये हमारे पास डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स आ गया x नॉट से x डिस्टेंस, मतलब 2x डिस्टेंस जो है कवर करने में। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमें एक्चुअली चार्ज निकालना है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो चार्ज के लिए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, जो नेट चार्ज जो होगा फ्लो कर रहा है r से थ्रू द r, ठीक है, चार्ज थ्रू r एट टी टाइम में, ठीक है। वो क्या होगा? वो आ जाएगा हमारा यहाँ से q इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 टाइम से t टाइम तक। तो 0 से t हो जाएगा i dt। q इक्वल्स टू क्या होता है? i t, तो i इंटू dt, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू t 1 बाई r, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ से E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा L डी आई बाई डी टी। सो ये हमारे पास इस तरह से आ गया और मल्टीप्लाई बाई है dt के, ठीक है। ये कहाँ से आया? इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसको लिख लिए हैं, ठीक है, d5 बाई dt, और ये इक्वल्स टू आई आर था जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आई आर को हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लिया। सो ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन इस तरह से मिल गई। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल जो Q मिलेगा वो आ जाएगा, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R के थ्रू, वो आ जाएगा 1 बाई आर इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड इंटू एल भी है, म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, log 2 log e मतलब log 2 बेस e, और मल्टीप्लाई मतलब माइनस हो जाएगा L बाई आर इंटू I1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस तरह से, ठीक है। तो हमें यही चार्ज निकालना था, जो चार्ज है टोटल Q चार्ज निकालना था, जो R से रेजिस्टेंस R के थ्रू जो है पास हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, वो हमें यही है जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। सो अब बी पार्ट हो गया, हम सी पार्ट को अब देखेंगे। सी पार्ट में क्या करना है? सी पार्ट में निकालना है सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट मतलब, क्योंकि ये क्या है, कौन सा सर्किट है? एल आर सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एल ओवर आर की वैल्यू निकालना है, जो कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा। तो हम निकाल लेते हैं। सी पार्ट हम करेंगे यहाँ से, ठीक है, सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में जो हमने चार्ज तो निकाल लिया, अब क्या है, बोल रहा है कि बार ए बी जो है स्टॉप हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है, स्टॉप। सो इस वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अभी तक मूव कर रहा था वो वी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, मतलब डेल फाई था। अब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब फाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास जीरो। जब फाई इक्वल्स टू जीरो हो गया मतलब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। तो जो अब क्या होगा, जो ए बी सी डी जो लूप था हमारा, फिगर देखते हैं हमारा, तो जो ये ए बी सी डी लूप हमारा बना है, ए बी सी डी, इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स थी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अब चेंज होना बंद हो गई है।
तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो थी, इसको यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जो आई आर है वो इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी के, डी आई बाई डी टी के, क्योंकि क्या हो रहा है डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डी टी है, डी टी को इधर लाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एल, ठीक है, डिवाइड बाई आर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा डी आई और डिवाइड बाई आई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से, पहले टी पॉइंट था, टी से कहाँ तक गया था ये टू टी टाइम तक, तो इसकी जो वैल्यू हो रही थी करंट की वो पहले क्या थी I1 थी टी पॉइंट पर, और 2t टाइम पर उसकी करंट थी I1 का 1/4 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो t आएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एल बाई आर लॉग ई, ठीक है, I1 डिवाइड बाई 4 का होल डिवाइड बाई I1, और ये आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें एल बाई आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा यहाँ से L ओवर R, ये इक्वल है हमारा T डिवाइड बाई, यहाँ से आ जाएगा T डिवाइड बाई हो जाएगा 2 log E बेस 2। ठीक है, सो ये हमें वैल्यू यही फाइंड आउट करनी थी कि जो L ओवर R है, जो टाइम कांस्टेंट है, वो क्या होगा, वो हमारे पास आ गया, वो होगा T ओवर 2 log E इंटू 2 log 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा जो हमें फाइंड आउट करना था इसमें। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट था, और ये फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन सिर्फ बतानी थी, सॉरी फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ बताना था कि जो रिलेशन है वो क्या होगी, तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, जो कि ये है। Hi, the question is, a rectangular frame ABCD made up of a uniform metal wire has a straight connection between E, F made up of the same wire as shown in the figure. AEFD is a square of side 1 meter and this EB is equal to FC is equal to 0.5 meter. The entire circuit is placed in the steadily increasing uniform magnetic field directed into the plane of the paper and normal to it. The rate of change of magnetic field is equal to this 1 Tesla per second. The resistance per unit length of the wire is this. It's given. This is the 1 ohm per meter. Let's find the magnitude and direction of the current in the segment of AE, BE and EF. We have to find the magnitude and direction of the current and A, B and EF. So we can see that in this question it is given that this is equal to AD, we can see in this figure. So this dB by dt is given, that is equal to 1 Tesla per second. So we can write dB and divided by dt, and this is equal to 1 Tesla per second is given. Clear? This is a 1 Tesla per second we can write. And the resistance per meter is given, that is equal to 1 ohm. Clear? Now we can see that this length is what, 1 meter. So resistance of this part is what, 1 ohm. We can write 1 ohm. Resistance of this part is equal to, we can write 1 ohm, and resistance of this part is also 1 ohm. Resistance of this part is also, this is 1 meter, so this is what, 1 ohm we can consider, and resistance of this part is also 1 ohm, and resistance of this part we can write, this is equal to 0.5 ohm we can write, because this length is what, 0.5 is given. Resistance of this part we can write, this is what, 1 ohm we can write, and a resistance of this part is what, 0.5 we can write this. Clear? Now let us consider E1. There is a 2 loop we can see, so let us consider this is what, loop first, and this is what we can write, loop second. Clear? Now in the first loop EMF induced, let us consider this is the E1. So E1 is equal to, we can write, this is what, D
phi 1 and divided by dt we can write, and this is equal to S1, and this is what dV and divided by dt we can write this, and S1 is what area of this square, and area of this square is what 1 into 1 into we can write dV by dt is given, that is equal to 1 Tesla per second, so we can write this, and this is equal to 1 volt we can write. Clear? Now E2 is equal to we can write this is what d phi 1 we can take, and this is what d phi 2 and divided by dt we can write this. Now this is equal to S2 into we can write this is the dB and divided by dt. This is what dB and divided by dt we can write. dB by dt is equal to we can write this S2 is what 0.5, this is the rectangle, into 1 we can write, and this dB by dt is equal to we can see from here, and this is equal to 1. Clear? So this is equal to 0.5 volt. Clear? This induced EMF in this first loop is 1 volt, and induced EMF in the second loop is equal to 0.5 volt. Clear? So let us consider this current through this we can write current through this is the I1 we can consider this I1, and the current through this is what I we can consider this I we can consider, and current through this we can consider this is what I2 we can consider. This current is what I2 we can consider. This is the I current, and this is what I1 current we can consider. This is what I1 current. Clear? Now from here we can see that this I1 is equal to I plus I2 we can see. From here KCL we can apply at this junction, so we can see that this I1 is equal to we can write I1 is equal to I and plus we can write I2. This, let us consider this is the first equation. Now we can insert a voltage source because EMF induced in is what 1 volt. So let us consider this is what voltage source, and this voltage is what 1 volt we can write. This is the 1 volt, and this is what E1 equal to 1 volt here, and we can write E2, and E2 induced in this loop. So this is what we can see that E2 voltage source we can insert in this loop, and this is equal to what 0.5 volt, and this is equal to what E2 we can write. Now if you apply KVL we have to apply in this loop, in the first loop. So we can see that resistance of this AD is what 1 ohm we have indicated earlier. This is equal to what resistance of this length is what 1 ohm. So if you apply KVL in this first loop and the second loop respectively, so we can see that from applying the KVL, this I1 current passes through this. In the first loop we can see that this is what resistance is 1 ohm, and the I1 current is passed through this and this we can see. So we can write this is equal to 3 into I1, and we can write this is equal to 1 into I. This is what 1 I current is passes through this. So we can write 3 into we can write 3 into I1, and plus we can write 1 into we can write this is the 1 into I. 1 into I is equal to we can write 1 volt. Clear? This, so this can be written as here, from here we can write 3 into I1 and plus I is equal to we can write this is equal to we can write 1 volt. Clear? Let us consider this is the second equation. Clear? Now if you apply the KVL in the second loop, then we will get 2 into I2 and minus I into 1. So minus I is equal to we can write 0.5 we can write. Clear? Let us consider this is the third equation. We can see from here 2 into I2. So this we can see this I2 current is passes through this. From here I2 current is passes, from here I2 current is passes, so 0.5 and 0.5, that is equal to 1, and 1 is this, so 2 into I2,
and we can write this is equal to, this is what, minus, and this minus we can see because current is going in this direction. In this direction we can see that. So this is 1 into 1 ohm resistance of this branch. So minus 1 into, we can write this is the I and equal to this. So this we can write. Now we have to solve this first equation, second equation and third equation. So we can write from first, second and third. From first, second and third we can solve this and we can find I1, I2 and I3. So after solving I1 we will get this is equal to 7 divided by 22 and this is equal to, and I2 we will get this is equal to 6 divided by 22 ampere, all are in ampere. So this can be written as 3 and divided by 11 ampere, clear, and all are in ampere. We can write this is what, ampere, and I we will get this is equal to, I we will get this is equal to 1 by 22 ampere. This now according to question we have to find the current through this EA. So current EA, I, and from E to A, and this is equal to, we can see that this is equal to 7 by 22. IEA we can see from there, IEA. So IEA is equal to what, we can say this is equal to I1, and direction is what, from E to A. So we can see that IEA is equal to I1 and this is equal to 7 divided by 22 ampere, we can write, clear, and IBE, I from B to E, this is the direction, and this is equal to this is equal to I2, clear, and now this I2 is equal to, we can see this is a 3 by 11 ampere, we can write, clear. Now IFE means I current this from F to E, and this is equal to, this current is equal to I, and this I is equal to what, 1 divided by 22 ampere, we can see, clear. Now this is the required answer for this question. Hope this answered your question. Thank you. इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल क्लोज्ड कॉइल्स हैं हमारे पास जो कि हैं A, B एंड C. हम देख सकते हैं ये A है, ये B है, ये C है फिगर में. बोल रहे हैं तीनों यहाँ पर इस तरह से अरेंज हुए हैं, ठीक है. कॉइल्स A और C जो हैं इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन हम देख सकते हैं करंट की. B में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है अभी तक, ठीक है. यहाँ पर बोल रहा है कि B और C जो है फिक्स्ड हैं, मतलब B और C मूव नहीं कर सकते हैं इस रॉड पर, ठीक है. एक्सिस के थ्रू क्या है, फिक्स किए गए हैं सेंटर के थ्रू, और A जो है मूव कर सकता है, एक कॉइल जो है मूव किया जा सकता है. तो ये किधर मूव कर रहा है, एक कॉइल को मूव कर रहे हैं B की तरफ. बोल रहा है कि एक कॉइल को अगर हम B की तरफ मूव करें, मतलब उसकी डायरेक्शन ये हो, इस डायरेक्शन अगर मूव करें तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है. तो बोलता है इज देयर एनी इंड्यूस्ड EMF इन B, तो क्या कोई इंड्यूस्ड करंट होगी B में, B कॉइल में, क्योंकि B में कोई करंट नहीं है अभी तक. सो अगर नहीं है तो रीज़न बताना है, अगर है तो हमें बताना है डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड करंट की, डायग्राम में शो करना है, ठीक है. तो इसका आंसर होगा यस होगी. इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर होगा यस, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, ठीक है. क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो फैराडे का लॉ है उसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि जब A में करंट फ्लो हो रही है मतलब इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्लोज्ड लूप है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से इस तरह पास होंगी इस लूप के चारों तरफ, ठीक है. इस वायर के कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है. तो जब ये इधर जाएगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से पास करेंगी और ऐसे आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं B से, और ये चेंज हो रही हैं क्योंकि B मूव कर रहा है, सॉरी A कॉइल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स B. जब B की तरफ हम मूव करेंगे तो जो नेट फ्लक्स है B में, A का जो फ्लक्स B में पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है. मतलब ये हो रहा है d∅dt, ठीक है, d∅dt. तो इसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा उसमें E, ठीक है. एक इंड्यूस्ड EMF E जनरेट हो जाएगा जिसके वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन वो होगी, ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा मतलब जो करंट होगी, जो करंट I आएगी यहाँ पर डेवलप होगी B में,
उसकी वो डायरेक्शन होगी कि वो अपोज करे। जो लेंज का लॉ है अगर हमें याद है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस वजह से वो जनरेट होगी करंट उसी को अपोज करती है। मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड की जो डायरेक्शन, जिस फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हो रहा है उसी का अपोज करेगी, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखें तो ये इसमें जो करंट है क्या है, अब क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इसकी करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो बी में जो करंट होगी इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट डेवलप होगी तो यस, ठीक है, यस इंड्यूस्ड करंट होगी जो कि होगी आई लेट से, ठीक है। अमाउंट सेम होगा, जितने चेंज होगी जिस तरह से उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ फ्लक्स जो है पास हो रही है, कितना चेंज हो रहा है नंबर ऑफ फ्लक्स, क्योंकि बी तो फिक्स है, सिर्फ ए को मूव कर रहे हैं। अगर हमें याद हो तो जो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है तो वो वही है कि कॉइल को अगर पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो उससे नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और चेंज होंगे जब नंबर ऑफ फ्लक्स तो उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा सेकेंड कॉइल में, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक, हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है एवी एक वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है। तो इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है, मतलब करंट जो है इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यू। तो इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो ये सर्कल है इसके पास एक लूप रखा है, ठीक है, कंडक्टिंग लूप है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जब ये वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रही है, मतलब फ्लेमिंग का रूल अगर यहाँ पर देखें, फ्लेमिंग रूल देखें, यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन आई है, फोर्स लगेगा अपवर्ड ऊपर की तरफ, मतलब इस वायर पर ऊपर की तरफ लगेगा, लेट से ये डायरेक्शन होगी अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस वायर पर, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अराउंड होगी और आउटवर्ड होगी। ये जो क्लोज लूप होगा इस तरह से वायर के चारों तरफ ये लूप बनेगा, क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये होगी बी, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से अगर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, वो इनसाइड ऐसे यहाँ से ये क्लोज लूप इस तरह से क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ इस तरह से पास हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब इसमें ये डायरेक्शन क्या है, ए बी में करंट की डायरेक्शन लेट से लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, वो इसके अपोजिट होगी, ठीक है, अपोजिट होगी। अगर एक वायर यहाँ हम रख के देखें, लेट से एक वायर है, दूसरा एक वायर रखा है यहाँ पर पास में इस वायर के पास, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसमें होगी राइट टू लेफ्ट होगी, इसमें क्या होगी, लेफ्ट टू राइट हो रही है। तो इसमें भी वही होगा। अगर इसके स्मॉल एरिया को यहाँ से यहाँ तक के एरिया को देखो तो एक ये वायर की तरह दिखेगा, तो इसमें करंट जो होगी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट जो वायर में फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन के अपोजिट करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। हमें सिर्फ यही बताना था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये होगी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।